Good afternoon to all my dear students. Today I am going to start chapter 16, the red rice granary. Red rice granary means लाल चावल का भंडार. Every year our country has to face natural disaster in some form. It may be an earthquake in Gujarat, floods and in Odisha, or a drought in Karnataka. In a poor country, these calamities create havoc. हर वर्ष हमारे देश में किसी न किसी रूप में प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है, जैसे कि गुजरात में भूकंप, उड़ीसा में बाढ़ और कर्नाटक में सूखा. किसी गरीब देश में ये आपदाएं तबाही ला देती हैं. In the course of my work, I have found that after such calamities, many people donate money or materials to relief fund. We assume that most donation come from rich people, but that is not true. On the contrary, people from the middle class and lower middle class help more. Rarely do rich people participate wholeheartedly. अपने कार्य के दौरान मैंने देखा कि आपदाओं के बाद कई लोग राहत कोष में धन या अन्य सामग्री दान करते हैं. हम ऐसा मानते हैं कि ये दान धनवान लोगों से आते हैं, पर यह सच नहीं है. इसके विपरीत लोगों में से मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय ज़्यादा सहायता करते हैं. ऐसा बहुत कम होता है कि धनवान लोग दिल से इसमें भाग लेते हों. A few years back, I was invited a reputed company in Bangalore to deliver a lecture on corporate social responsibility. Given a speech is easy, but I was not sure how many people in the audience would really understand the speech and change themselves. कुछ वर्ष पूर्व मुझे बेंगलोर की एक प्रसिद्ध कंपनी ने संगठित सामाजिक उत्तरदायित्व पर अपने विचार प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया. भाषण देना बहुत सरल है, किंतु मुझे पक्का नहीं है कि सभा में आए हुए कई लोग वास्तव में भाषण को समझते हों और अपने आप को बदलते हों. After my talk was over, I met many young girls and boys. It was an affluent company and the employees were well off and well dressed. They were all very emotional after the lecture. जब मेरा भाषण समाप्त हुआ, मैं कई नौजवान नवयुवती से मिला. वह एक अमीर कंपनी थी और वे सब धनी थे व बढ़िया ड्रेस पहने थे. वे सभी भाषण के बाद भावुक हो गए थे. मैडम, we buy so many clothes every month. Can we donate our old clothes to those people who are affected by earthquake? Can you coordinate and send them? वे बोले, मैडम, हर माह हम कई नए कपड़े खरीदते हैं. क्या हम उन पुराने कपड़ों को उन लोगों को दान कर सकते हैं जो भूकंप से प्रभावित हुए हैं? क्या आप इसका बंदोबस्त करेंगे व हम उन्हें भेजेंगे? उनमें से कुछ न अन्य चीज़ें प्रस्तावित की. हमारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं. हम उनके पुराने खिलौने और कुछ बर्तन उन्हें देना चाहते हैं.
I was very pleased at the reaction. I reminded me of the incident in Ramayana were during the construction of the bridge between India and Lanka. Every squirrel helped Sri Rama by bringing the handful of sand. मैं उनकी प्रतिक्रिया से प्रसन्न हुई। उसने मुझे रामायण के उस प्रसंग की याद दिलाई जिसमें भारत व लंका के बीच राम सेतु बन रहा था। तो हर गिलहरी ने भी राम की सहायता मुट्ठी भर रेत लाकर की थी। प्लीज़ सेंड योर बैग्स टू माई ऑफिस। I will see that they reach the right person. Within a week, my office was flooded with hundreds of bags. I was proud that my lecture had proven so effective. One Sunday, along with my assistant, I opened the bags. What we saw left us amazed and shocked. The bag was brimming over with the kind of junk piles of। एक सप्ताह के अंदर मेरा ऑफिस सैकड़ों बैग्स से भर गया। मुझे बड़ा गर्व हुआ कि मेरा भाषण इतना प्रभावशाली सिद्ध हुआ। एक रविवार को मैं अपने असिस्टेंट्स के साथ मैंने थैले खोले। हमने देखा जो उससे हमें बड़ा आश्चर्य और आघात लगा। थैले कबाड़खाने से भरे पड़े थे। ऊंची एड़ियों के चप्पल का ढेर, फटे कपड़े, बिना धुले शर्ट, पतली पारदर्शी सस्ती साड़ियाँ, खिलौने जिनकी न आकृति थी न रंग, अनुपयोगी बेड शीट्स, एल्यूमिनियम के बर्तन, टूटी कैसेट्स, ये सब हमारे सामने एक पहाड़ की तरह एकत्रित थे। कुछ ही अच्छी साड़ियाँ, शर्ट्स व उपयोग योग्य चीज़ें थी। It was apparent that instead of sending the materials to the garbage or the kabadiwala, these people had transferred them to my office in the name of donation. The men and women I had met that day were bright, well traveled, well off people. If educated people like them behaved like this, what would uneducated people do? यह स्पष्ट था कि इन वस्तुओं को कूड़ा घर या कबाड़ी वाले को भेजने की बजाय उन्होंने दान के नाम पर हमें स्थानांतरित कर दिया। जिन आदमियों व स्त्रियों से मैं मिली थी वे चमकदार, खूब यात्रा किए हुए संपन्न लोग थे। यदि इनके समान शिक्षित व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो अशिक्षित व्यक्ति क्या करेंगे? But then I was reminded of an incident from my childhood. I was born and brought up in a village in Karnataka's Haveri district called Shigaon. My grandfather was a retired school teacher, and my grandmother, Kristaka, never went to school. Both of them had hardly travelled and had never stepped out of Karnataka. And they were hardworking people who did their work wholeheartedly without expecting anything from anybody in their life. Their photographs never appeared in any paper, nor did they go up on a stage to receive a prize for the work they did. They lived like flowers with fragrance in the forest, enchanting everyone around them but hardly noticed by the outside world.
किंतु तभी मुझे मेरे बचपन की घटना याद आई। मेरा जन्म व पालन पोषण कर्नाटक के हावेरी ज़िले के एक गांव शिग्गांव में हुआ था। मेरे दादाजी एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थे। मेरी दादी जो कभी स्कूल नहीं गई थी। दोनों ने शायद ही कोई यात्रा की हो और भी कर्नाटक के बाहर तो उन्होंने कदम रखा ही नहीं था। तो भी वे कठोर श्रम करने वाले व्यक्ति थे जो अपने कार्य को पूरा दिल लगाकर करते थे। वह पूरी ज़िंदगी में उन्होंने किसी से भी किसी भी चीज़ की अपेक्षा नहीं की थी। उनके चरित्र कभी किसी अखबार में नहीं छपे, ना ही वे किसी मंच पर अपने कार्य के लिए कोई पुरस्कार लेने चढ़े थे। वे जंगल में खुशबू से मिलते खिले हुए फूल के समान जिए, अपने आसपास के हर व्यक्ति के आकर्षण थे, किंतु बाहरी दुनिया ने कभी उन्हें चिन्हित नहीं किया था।